Welcome to Learn Short and Typing with Vikas sir. Times of India न्यूज़पेपर फर्स्ट आर्टिकल ग्रीन एंड सिक्योर। आप लोगों को पता है कि ये जो आर्टिकल है हमारा चार धाम जो हाईवे है जो चार धाम का हाईवे है जो बनाया गया है उसी को लेकर ये आर्टिकल है। हेडिंग क्या है? चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट मस्ट सी गवर्नमेंट को देखना चाहिए एंड एनवायरमेंट्स वर्क टुगेदर। इन्वायरमेंट को भी देखना चाहिए और प्रोजेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। इसी को लेकर ये आर्टिकल है, हम डिटेल में डिक्टेट करेंगे इसको। 100 वर्ड पर मिनट, सो बी रेडी। और आपकी जो कोर्ट वाली जो 800 वर्ड्स है वो आपको आफ्टरनून में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका सेशन होगा द हिंदू एडिटोरियल का तो हम आएंगे और उसके बाद आफ्टरनून में एक सेशन और करने की कोशिश करूँगा मैं, जो आपके कॉम में है, जहाँ पे आपको कोमा या आपका एंड से कनेक्टेड जो वर्ड हैं यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, वो सेशन आपको आफ्टरनून में कोशिश करेंगे आपको सेशन में, अगर हमें टाइम मिला तो, नहीं तो हम कल परसों 1-2 दिन में कर देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना डिक्टेशन करते हैं। सो बी रेडी, स्टार्ट। बिल्कुल। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजर्व्ड इट्स जजमेंट ऑन एन अपील बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर रिलैक्सेसिंग इट्स September 2020 order regarding the Char Dham highway development project, but the whole issue has turned into a defense versus environment debate. Recall that the project is a flagship initiative of the center that sought to widen 889 km of mountainous road to provide all-weather connectivity to Uttarakhand's Char Dham Shrines stop. However, the project also has a security dimension given the current situation at the India-China border. But as environmentalists and NGOs have pointed out, unthinkingly widening the road in such an eco-sensitive zone will have severe consequences for a state that has been grappling with major landslides and environmental degradation. Just in February this year, the Tapovan Environment Hydroelectric Power Dham was completely washed off following a massive landslide in Uttarakhand's Chamoli district. Keeping this in mind, the Supreme Court in September 2020 had upheld the recommendations in the minority report of a high-powered committee to limit the flagship project's carriageway to 5.5 m, but the majority report of the same committee had agreed to a 12-kilometer widening. The latter would involve additional deforestation, slope cutting and tunnelings. Needless to say, this would further impact the ecological sensitivity of the area. But the Modi's has now put its weight behind a double land road suitable for the army. Clearly, some sort of balance has to be struck between the needs of military and environmental concerns. Recent India-China border tensions mean that New Delhi has no choice but to improve its border
infrastructure in the eco-sensitive Himalayan zone. Stop. But national security should not be conceptualized only in terms of military needs. If project execution leads to faster environmental degradation, massive flooding and landslides that in turn lead to huge loss of property and lives, that too undermines national security. The best solution here would be for government and environmentalists to work with each other instead of at cross purpose. However, the government had previously indicated that it may exempt defense projects from green requirements. In the Char Dham project, the Ministry of Road Transport and Highways actually amended its previous guidelines for mountainous roads to support the government's widening plans. Such delusion of environmental policy can be problematic. Hence, a fresh approach for all border infrastructure that looks at environmental impact transparently should be the SOP, यानी स्टॉप। स्टूडेंट इसको आप टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद आप इसको आप मैच कीजिए। इसमें आपके काफ़ी न्यू वर्ड्स हैं, जैसे कैरिज वे हो गया वर्ड, इंडिया चाइना तो आपका कॉमन वर्ड है। चार धाम हाईवे, हाईवे कॉमन है। चार धाम हो गया आपका कॉमन वर्ड है। इतने कुछ काफ़ी सारे, जैसे होगा तैपून, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी तैपून की स्पेलिंग होगी TAPOVAN। और तो आपके सारे सभी वर्ड्स काफ़ी मतलब कॉमन वर्ड है सारे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, अगर आप डेली की डेली हिंदू एडिटोरियल को डिक्टेशन करते हैं, उसको आप टाइप करते हैं, तो आपको लिए कॉमन वर्ड है ये। अगर नहीं करते उसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ जाएगी, उसको आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ MP में भी निकले हुए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जो आपके चैनल पे ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसलिए आप सारा फोकस अभी तो फ़िलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए कीजिए। और आपका ये मत सोचो कि आपका टाइम आपको 1 महीना मिलेगा, 2 महीने मिलेंगे, आपको सिर्फ 15 ही दिन मिलेंगे। आपको 15 दिन में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे शायद, 10 दिन में ही आपको एडमिट कार्ड डाल देंगे, और 10 दिन में जल्दी आपका स्किल टेस्ट ले लेंगे। उनको जल्दी ही आपका स्किल टेस्ट लेके और जल्दी ही आपका मतलब रिजल्ट निकालना है और जल्दी ही ज्वाइनिंग करनी है उनको। इसलिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। जहाँ से भी आज आपका एडिटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल करो, वो करो, आप डिक्टेशन करो और टाइप करो, ठीक है। अगर आप टाइप नहीं कर रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे टाइप ही 400 वर्ड है, टाइप का ही मैटर आपको मिलेगा और टाइप ही करना पड़ेगा आपको। बहुत सारी मिस्टेक मिलती हैं, जैसे आपकी एक मिस्टेक अगर आपको जैसे परपिट्रेटर होता है, परपिट्रेटर, अगर वो वर्ड 10 बार आपके डिक्टेशन में आता है, अगर एक बार आपने मिस्टेक कर दी है, ई की जगह ए डाल दिया है, तो आपकी 5 बार आपने मिस्टेक कर दिया तो आपका बिल्कुल 0 हो गया। इसलिए आप टाइप करने में कोई भी हरकत मत कीजिएगा, टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप मैच कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।